हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर पेंशनर्स। तो अभी एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी जो ऑफ न्यू इंडिया इंश्योरेंस है वो दोस्तों आउट हो चुकी है। उसका सर्कुलर 8 अक्टूबर 2022 का रिलीज हो चुका है। तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल फॉर लेटेस्ट बैंकिंग एंड पेंशन अपडेट्स। तो अगर आप देखें तो AIU BRF का जो पेंशन यूनियन है उसने ऑप्शंस दिए हैं, जहां तो IBA स्पॉन्सर्ड NIC परचेज कीजिए या फिर NIA की पॉलिसी है जो परचेज कीजिए। तो उसका जो रियल सर्कुलर है वो अभी हम देखने वाले हैं दोस्तों। ऑल इंडिया यूनियन बैंक रिटायरीज फेडरेशन 8th of October 2022 to all office bearers, CC members to of AIURF and state units and members and retirees. Dear friends, subject renewal of medical insurance policy of New India Insurance Company NIA for the year 22 and 23. By now, you must have across the circular issued by our bank regarding renewal of medical insurance policies sponsored by IBA. We find that there is increase in the premium this year. आपको पता है जो प्रीमियम है इस ईयर काफी राइज हुआ है बिकॉज ऑफ द जो क्लेम्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं दोस्तों। We take this opportunity to inform you that the New India Insurance NIA is renewing the insurance policy for the year 22-23 after prolonged deliberations by company KM Dester Reinsurance Brokers for the third term. However, the premium of NIA2 has been increased because of higher claim ratio. आपको पता है इसकी वजह से जो क्लेम रेशियो वो बढ़ा है, तो अभी जो प्रीमियम्स हैं वो राइज हुए हैं. The premium rates were negotiated with the public sector insurance companies who are under strict supervision and directions of the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Delhi, to structure a calculator which has to be followed implicitly by all and to ensure premiums are charged with low claim ratio and adding medical inflation and administration expenses. Keeping these parameters in mind, तो उन्होंने जो पैरामीटर्स को माइंड में रखते हुए वी रियलाइज दैट द प्रीमियम हैज इंक्रीज्ड, प्रीमियम बढ़ा है दोस्तों. But the same approach has been adopted by all public sector insurance companies. Despite this, KMD has ensured to partner with the retirees and give a premium which is still lower. जो प्रीमियम अभी भी दे रहे हैं वो लोअर है दोस्तों in comparison to NIC in the given circumstances. The terms and conditions of this year renewal policy in 2022-23 by New India Insurance Company insurance policy are the same. However, this year KMD has introduced a finance EMI option. तो अभी एक EMI की ऑप्शन है जो दोस्तों वो इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया फॉर द रिटायरीज विच शुड हेल्प ऑल इन इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ देयर रिसोर्सेज टू इंश्योर रिटायरीज कंटिन्यू टू वेल द पॉलिसी फॉर अ बेटर हेल्थ केयर. तो अभी जो NIA की पॉलिसी है उसमें प्रीमियम भी दोस्तों कम है और इसमें फाइनेंस की जो ऑप्शन है EMI ऑप्शन वो भी दोस्तों इंट्रोड्यूस्ड कर दिया है. अगर आप इसके हाइलाइट्स देखें, हाइलाइट्स ऑफ दिस ईयर रिन्यूअल पॉलिसी बाय न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस पॉलिसी आर फर्निश्ड. तो अगर आप देखें बेस 3 लाख, सेल्फ प्लस स्पाउस 35,913, उसमें सुपर टॉप अप इसमें है नहीं, तो टोटल बनता है प्रीमियम 35,913. तो हैंडीकैप्ड डिपेंडेंट चाइल्ड 4,720 प्रीमियम. ऐसे ही अगर आप प्रीमियम दोस्तों देखें मैक्सिमम का दैट इज 4 लाख प्लस सुपर टॉप अप दैट इज 5 लाख, तो उसका जो बेस पॉलिसी का प्रीमियम बनता है 46,173 है. और प्लस अगर आप इसमें देखें सेल्फ प्लस स्पाउस तो 12,279 एंड टोटल बनता है 58,000. मीन्स ये कम है दोस्तों, वहां पे बन रहा था अप्रोक्सीमेटली 72,000. सो हैंडीकैप्ड डिपेंडेंट चाइल्ड ऐड करें तो 7,080. सो द प्रीमियम रेट फॉर द सिंगल रिटायरीज एंड पर्सन फ्रॉम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इज नॉट येट फाइनलाइज, वो अभी फाइनलाइज नहीं हुए. वी विल इन्फॉर्म द सेम एज सुन एज वी रिसीव्ड इट. So the procedure for enrollment of retirees into the NIA policy will be done online through a link, which will include intimation of a payment of premium. So detailed information will be given through a separate circular, and the retirees who are renewing the NIA policy
need not to fill in all details in the link as their data is already available दोस्तों. Accept if changes need to be notified. So comparison of premium for retirees plus spouse for national insurance and new India insurance company for the period 22-22-3 is as under. तो इसमें अगर आप देखें IBA नेशनल इंश्योरेंस कंपनी एंड न्यू इंडिया इंश्योरेंस पॉलिसी, तो ये दोनों का दोस्तों कंपैरिजन है. बहुत अच्छा चार्ट है ये. यहाँ पे अगर देखें आप बेस 1 लाख प्लस सुपर टॉप ऑफ 1 लाख, इसमें न्यू इंडिया ने अभी तक कोई कोट नहीं करा दोस्तों. आप देखें 3 लैक्स ओनली. 3 लैक्स में जो प्रीमियम है वो IBA या नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का है 41,334 और वहीं न्यू इंडिया का है 35,913. मीन्स यहाँ पे न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का कम है दोस्तों, वो है 5,421 रुपीज कम है. उसके बाद अगर आप देखें 3 लैक्स प्लस सुपर टॉप अप 4 लैक्स, तो उसमें जो मैक्सिमम गैप है वो 9,000 का है. मीन्स 9,000 आपको पॉलिसी चीप मिल जाएगी NIA में इन कंपैरिजन टू IBA स्पॉन्सर्ड जो मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी है. अगर आप देखें मैक्सिमम में 4 लैक्स प्लस सुपर टॉप अप ऑफ 5 लाख, इसमें IBA का जो है मैक्सिमम वो बनता है 72,000. जैसा कि आपको पता है मैक्सिमम 72,988 बनता है प्रीमियम, और यहाँ पे बनता है 58,452. जो इंक्रीज है वो 14,536 का है. तो आप देख सकते हैं न्यू इंडिया इंश्योरेंस पॉलिसीज काफी चीप हैं, starting from 5,000 to 14,000. So we request all bank retirees to avail either of the two choices out of IBA sponsored NIC or alternate NIA insurance policy. However, there are certain benefits in NIA policy. आपको पता है NIA में certain benefits है because of low. आपको पता है भी इसमें लो प्रीमियम्स रहेगा एंड इट्स नाउ वेल एस्टेब्लिश्ड service system but continues to live up to the health care expectation and need of the bank retirees. So we reiterate, this is the insurance policy for bank retirees that has an intervening capacity by the retirees association by way of holding periodical meetings or involving in other emergent situations before hospitalization, including sanction of cashless facility or during hospitalization, and escalation of issue or assistance of bank retirees at any time. So it is therefore made amply clear that AIU-BRF leaves the option open to retirees to choose between the New India Insurance Company or IBA National Insurance Company policies. तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो प्रीमियम है इन द NIA पॉलिसी में एंड IBA स्पॉन्सर्ड जो पॉलिसी है NIA में कम है दोस्तों. उसके बाद NIA इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का जो रिटायरीज बेस प्लस सुपर टॉप अप मेडिक्लेम पॉलिसी 22-23 उसकी कवरेज डिटेल्स इन्होंने प्रॉपरली यहाँ पे बताई है दोस्तों. पॉलिसी टाइप कौन सी है? ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर रिटायरीज एंड देयर डिपेंडेंट्स. डेफिनेशन ऑफ फैमिली 1+1 रिटायर्ड एम्प्लॉय प्लस स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन हु आर फिजिकली एंड मेंटली चैलेंजेस and at the same time remain as their dependent and reside with the retired members without age limit restrictions are covered only in base policy. वो सिर्फ बेस पॉलिसी में कवर्ड है एंड नॉट इन द सुपर टॉप अप एज पर लास्ट ईयर. तो इसमें आप देख सकते हैं बेस ईयर 3 लैक्स है, 4 लाख है, सुपर टॉप अप सम शॉर्ट 3, 4 and 5. एज लिमिट देयर इज नो मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट इन द पॉलिसी. कवरेज टाइप फैमिली फ्लोटर. प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन देखें हम 30 डे प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 60 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन. रूम रेंट में अगर आप देखें तो 1% ऑफ सम शॉर्ट पर डे ओनली ऑन सम शॉर्ट ऑफ बेस पॉलिसी. ICU रेंट में देखें आप 2% ऑफ सम शॉर्ट पर डे ओनली ऑन द सम शॉर्ट ऑन द बेस पॉलिसी. तो ऐसी लिमिट ऑफ डिसीजेस में देखें कैटरैक्ट में 30,000 पर आई, ज्वाइंट रिप्लेस में 1,45,000 पर ज्वाइंट, एज रिलेटेड मस्कुलर डीजनरेशन में 30,000 ओवरऑल फॉर ऑल द सिटिंग्स,
तो एंड एनियोग्राफी में आप देखें 20,000. सो ट्रांसपेरेंसी इंस्टेड ऑफ यूजिंग द रीजनेबल एंड जस्टिफिकेबल क्लोज एंड पेइंग डिफरेंट अमाउंट्स अंडर वेरियस क्लेम्स विदाउट एनी स्टैंडर्डाइजेशन. सो प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेज में कवर्ड फ्रॉम डे 1 to 4 वेटिंग पीरियड फॉर स्पेसिफिक अलाइनमेंट वेव्ड है. 30 days वेटिंग पीरियड वो भी वेव्ड है. एम्बुलेंस के चार्जेस 2500. डे केयर कवर एज पर स्टैंडर्ड कवर. तो आप दोस्तों देख सकते हैं जो NIA की जो पॉलिसी है वो चीप है. सो नाउ इट इज़ योर डिसीजन विच पॉलिसी यू हैव टू चूज. तो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड शेयर कर देना. दैट्स ऑल. थैंक यू.